डिड यू नो 60% से ज़्यादा कस्टमर्स प्रोडक्ट परचेज करने से पहले लैंडिंग पेज पर FAQ सेक्शन जरूर दें। FAQ सेक्शन कभी कभार अनऑर्गेनाइज होते हैं जिससे कस्टमर्स बिना पढ़े ही स्किप करके चले जाते हैं और तक कन्वर्जन नहीं आता। आई एम TD, दिस इज द डे 6 ऑफ 100 Day Favorite Series. Let's get started. So in the framework, we have created different types of FAQ sections. As you can see that in the first one, and I have created very simple one. I have also created the colored one, and this is a little bit of some adjustment, like I have added these tabs. एक ही अकॉर्डिंग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कैसे बना सकते हो, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम वेरी स्क्रैच वेरी फंडामेंटल अकॉर्डिंग. So first we are going to create the new project. You can see there will be this window will pop up if you want to add, but we are going to create from very scratch. तो इसको क्लोज कर देते हैं. और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट में जो कैनवस आता है वो वाइट कलर का है. हाँ, अभी वाइट ही रखते हैं इसको. एंड इसका डेस्कटॉप को इसके ब्रेक पॉइंट्स हम बाद में क्रिएट करेंगे. फर्स्ट हम बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, लाइक हेडिंग, FAQ, सब हेडिंग. एंड उसके नीचे हम बिल्कुल अभी हम स्टैक्स वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे. जस्ट वी आर क्रिएटिंग आवर स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्वेयर टाइप FAQ. फिर हम दूसरा इसका हेडिंग टाइप करेंगे फ्रिक्वेंटली. दिस विल बी द हेडिंग. यू कैन पुट any kind of a text here according to your need, according to your landing pages and the product. Here I'm keeping very simple, frequently asked questions. So we are going to change the font color and the size and also the font name. So here I'm selecting a Google Flex font. You can go there, type Google Sans Flex. It is Sans Flex, it is the new font. Here I will keep this in the 16. Okay, here I will keep this one, double it. Yeah, it is looking better. And make it semi bold. Here again I will duplicate it and type anything. So I'm typing here like more than 100 plus customers are satisfied. So this will be our subheading. So it will be reduced to the regular. I can, medium will be better, medium will work, but there should be gap of 2 in the bold. So 2 का गैप अगर आपने हेडिंग सेमी बोल्ड रखा है, अगर आप इसको रेगुलर रखेंगे तो एक अच्छा, आई थिंक दिस इज लुकिंग बेटर. थोड़ा सा यहीं पर हम कलर ऐड कर देते हैं. फर्स्ट वी विल क्लिक हेयर and select around blue color, little bit of blue. Yeah, this much. Yeah, this thing, I think this is looking better. You can select according to your need. I'm thinking of increasing size to the little bit bigger, or we can keep it 36. I think this is better. So we are just adding heading, subheading, accordions, and then we will start converting it into a complete stacks or a complete layout. Here to add the accordion, here we will click F and add the frames here. I will keep the frame around 56 height and this much of length. You can also type it here. I am selecting this length to 496. 496 is just length. You can select it's kind of a multiple of it. So you can select any height or a length according to your need. I'm just selecting this one. I will change this color to the color that I have added in the this one. I'm going to add accordions in the colored. So yeah, after that I will add the text. What is, it is not showing up because color is blue, so we are going to keep it. का टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है तो उसको थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देंगे. दैट विल बी गुड फॉर 24. या दिस मच लुकिंग बेटर. सो
हियर वी आर गोइंग टू ऐड द रेडियस। तो यहाँ रेडियस में ऐड करने का एक रूल है, जिसको अगर आप ऐड करते हो तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इसकी जितनी हाइट है 56, इसको आप कॉपी करो, रेडियस में आओ, पेस्ट करो एंड डिवाइड इट बाई 2। So this your coding your tab will look like this and आप इसकी रेडियस कम भी कर सकते हो, इसका और आप हाफ कर दो। अगर आपको थोड़ा सा पैसा है चाहिए और भी इसका आप हाफ कर सकते हो। आप कहेंगे कि इसमें हमें 8 का मल्टीपल नहीं है रेडियस में, दैट्स फाइन। 1 पिक्सल से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसा रख सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली 56 का हाफ रखने वाला हूँ। आई लाइक दिस शेप या मेरे को थोड़ा सा इसका इसका मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड इसका साइज भी 20 रख देता हूँ। दिस इज लुकिंग मच बेटर आई गेस। सो माय फेवरेट आइकन प्लगइन इज फ्रेमर आइकन्स yes, here it comes. Here I will add the plus. It is added outside, no worries. Just select it, copy it and paste it here. I like this today. अब हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम इसको स्टैक्स में, मतलब एक प्रॉपर लेआउट में कन्वर्ट करेंगे वन बाय वन। ऐड स्टैक ऐसे। अब आप देखोगे कि पूरा एक्सपेंड हो गया है, बिकॉज इट इज इन द फिल्ड सिचुएशन फिट लेयर्स। यस, दिस इज अ फिट। तो जो इसका स्टैक हमने ऐड करा है, इसको भी हम कर देंगे फिट कंटेंट एंड हाइट विल बी फिट कंटेंट। इसको हम थोड़ा सा अभी यहाँ रखते हैं। स्टैक पे जाएंगे, अब इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस कलर एंड इसका जो टेक्स्ट का कलर है यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। अब हम इसमें स्टैक्स में पैडिंग ऐड करेंगे so that it looks much better. So I'm going to try with 8, but it is looking little bit bigger. So I'm going to reduce it to the 4. This is good. And we are going to add radius here for the 4. Or you can select it to the height ka half. Height is around 26, so you can add 12. दिस इज बेटर। सिंपली स्टैक करने के लिए आपको शिफ्ट ही दबाना है। नाउ इट्स इन अ स्टैक पोजीशन। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक स्टैक में ऐड हो जाए। सो सिंपली ऐड द शिफ्ट ए, नॉट्स इन द स्टैक एंड इसको मैं नाम देता हूँ हेडिंग रैप। ओके, एंड दिस इज द हेडिंग। ओके, नाउ आवर दिस थिंग इज रेडी। जो बाहर हमने अभी हेडिंग रैप में ऐड करा है, इसको हम अभी रिलेटिव में है, इसको भी एज इट इज छोड़ते हैं, इसको हम बाद में आते हैं। अब भी हम सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अकॉर्डियंस पे आते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आई वॉन्ट दिस इन 1 फ्रेम। तो पहले हम फ्रेम को कमांड एंटर से ऐड कर देंगे। ओके, और यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट टू द लेआउट। ओके, यहाँ पे ये स्टैक में ऐड करा है हमने। अभी मैं इसको सेंटर करूँगा और इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा कि यहाँ तक आ जाए। इसको हम कर देंगे, सबसे पहले हम बाहर ऐड करते हैं ये चीज़। ठीक है, इसमें हम पैडिंग ऐड करेंगे मैनुअली। टॉप एंड बॉटम आई विल कीप 12 एंड राइट एंड लेफ्ट आई विल कीप 16। या वी आर गेटिंग देयर, करेक्ट। You can also do the other steps also, but I like this one. Yeah, so now make it space between. What space between will do, it will make it like this and extend it. Okay, and
here it is in the center, here it is in the fixed position, that is why it is coming like this. I will make it fill. This is a fill. Yes, now it is working good. And I will also make it fill. There is space, so I want this to be fill. Now it is looking fine. मैंने बाहर वाले को फिक्स रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी यहाँ पे हमारे आउटसाइड स्क्रू नहीं है। अगर मैं इसको फिल करूँगा तो ये फिट करूँगा तो ये ऐसा कुछ होगा, बट मैं चाहता हूँ कि ये अभी के लिए फिक्स रहे। सो फर्स्ट आई विल सिलेक्ट दिस। पहले हम इसका नेमिंग दे देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम टेक्स्ट एंड आइकन रैप। आई विल पुट ओनली द टेक्स्ट रैप। इसमें आइकन भी है, सो नो वरीज। This is our accordion. Okay. Now I'm going to create the component out of it. Okay. Create accordion. Okay. राइट साइड में हम इसका एक वेरिएंट बनाएंगे, क्योंकि जब भी कोई इस पे क्लिक करे तो वो इस तरीके से खुले, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जब कोई क्लिक करे सो दिस विल बी द वेरिएंट। तो अब हम यहाँ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ नीचे टेक्स्ट चाहिए, तो अभी हम इसके लिए पूरा शेप इसको पूरा कॉपी करेंगे। ओके, यहाँ से आइकन डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे। थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको 2 लाइन्स का। आप इसको मैं 3 लाइन्स का भी रख सकते हो, बट आई एम लाइक मुझे इतना ही टेक्स्ट रखना सही लगता है। ये पूरा वाइट है, इसको पूरा वाइट करेंगे एंड यहाँ से कर देंगे 54%, बिकॉज आई वांट दिस टू बी लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको, जिससे थोड़ा सा ये रीडेबल हो। ओके, रीडियस हमें कुछ नहीं करना है। हम चाहे तो राइट साइड में थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। इसको अगर मैं 20 कर दूं तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर। 20, यस, इट इज कमिंग आउट वेल। और इसका भी हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा साइज। यस, नाउ इट इज फीलिंग इट, नाउ इट इज लुकिंग गुड। अब अगर हम इसको चेक करके कि देखेंगे क्या ये ओपन हो रहा है, ये नहीं ओपन हो रहा है, बिकॉज अभी हमने यहाँ पे एनिमेशन नहीं लगाया है, इसको कनेक्ट नहीं करा है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कि व्हेन समवन क्लिक इट विल ओपन द वेरिएंट 2, एंड वेरिएंट 2 में हम हल्की सी एनिमेशन भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ईज सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इसमें टाइम बढ़ाएंगे एंड एग्जैक्ट सेम 0.5 एंड विद दिस फिगर वी विल ऑल्सो कनेक्ट कि जब कस्टमर ने यहाँ पे तो क्लिक करा, वो इस पोजीशन पे गया, अब वो वापस उसी में जाना चाहता है ओपन वाले में या क्लोज वाले में, तो वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए भी हमें इसको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो हियर वी प्रेस द क्लिक and add the same animation. Yes, it is added here. Now if we go and check how it is coming out, yes, it is coming out very well. Okay, so now we are going to duplicate all these accordion here. 1, it will come here, 2, 3, 4. You can add according to your need. So here I'm going to keep only the 5 accordions. उसके बाद हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड इसका लेआउट बनाएंगे एंड जो इसका रिलेटिव है इसको फिट कंटेंट करेंगे। एंड अगर आप देखोगे तो ये बार बार लेफ्ट में जा रहा है, तो सबसे पहले हम बाहर से सिलेक्ट करेंगे, इसको फिट कंटेंट कर देंगे। अब आप देखोगे कि फिट हो गया है, नो वरीज। यहाँ पे हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। डेस्कटॉप में मैंने आपको बताया था कितनी पैडिंग ऐड करनी है, which is will be the default padding, that is 96. ओके, बट सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। हमारा यहाँ पे हेडिंग लेआउट में है, ये भी लेआउट में है, अकॉर्डियन भी अब एक लेआउट में
आ गया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ accordion wrap. ओके, नाउ वी गो एंड चेक इट नाउ. सी, ये कैसे एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, ये पुश कर रहा है एंड इसके अंदर जा रहा है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यू नो क्लिप की जगह हम इसको विजिबल करेंगे पहले, एंड राइट क्लिक करके जो ये पोजीशन, ये जो प्रॉब्लम कर रहा है एकदम से जंप कर रहा है, जैसे कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो ऐसे जंप कर रहा है, जब हम क्लोज कर रहे हैं तो एकदम से इसमें आ रहा है. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पूरा एक स्टैक में है और एक के ओपन होने से वो बाकी सब की भी पोजीशन को अफेक्ट कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन है कि हमें इसका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा रैप का. यस, एंड इसमें भी हमें जो एनिमेशन है वो बिल्कुल सेम करनी पड़ेगी जो हमने वहाँ पे करी, with the same values 0.5 ease in ease out. Now we are going to check it. See, this is not jumping now. Almost accordion ready है, but अभी हमें इसको responsive भी बनाना है. तो responsive बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 क्लिक्स करने हैं और ज़्यादा कोई साइंस नहीं है. तो पहले हम यहाँ पे टैबलेट ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ पे फ़ोन ऐड करेंगे. एज यू कैन सी दैट फ़ोन में ये पूरा हिल चुका है, पूरा ख़राब हो चुका है. नो वरीज. तो पहले हम जाते हैं हेडिंग पे. हेडिंग रैप को हम कर देंगे फिल. ठीक है, हेडिंग रैप हमने कर दिया फिल, हाइट कर दी फिट. ओके, फिर हम जाएंगे टैब में, ये बिल्कुल सही है, फिट फिट. फिर हम हेडिंग का उसका देखेंगे, इसको भी हम कर देंगे फिल बिकॉज आई वांट इट टू बी रेस्पॉन्सिव. फिर हम जो इसके अंदर टेक्स्ट है उसको भी हम फिल कर देंगे. ओके, नो वरीज. अगर ये ऐसा हो जाए तो बस आपको यहाँ नीचे जाके अलाइन सेंटर करना है, ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा. उसके बाद हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे एंड इसका भी विड्थ कर देंगे फिट और हाइट कर देंगे फिट. अब ये इधर चला गया तो यहाँ से इसका अलाइनमेंट ठीक कर देंगे. ओके, नो वरीज. अब ये पूरा एक हेडिंग रैप पूरा एक अपने आप में एक ग्रुप है. अब इस ग्रुप को मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो, जैसे कि अभी फिल हो रहा है. आई वांट कि जितने भी यहाँ अकॉर्डियन है और ये है पूरा एक सिंगल उसमें आ जाए, ग्रुप में आ जाए, सो दैट आई कैन मेंटेन ऑल ऑफ देम इन वन ग्रुप एंड ट्राई टू कंट्रोल देयर विड्थ. करेक्ट. सो सबसे पहले हम आएंगे इधर accordion. This is our accordion. This is our heading. देखा जाए ग्रुप में तो यहाँ पे 2 चीज़ थी. अब यहाँ पर मैं इनको स्टैक में कन्वर्ट करूँगा और इसका नाम दे दूँगा कंटेनर बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग एवरीथिंग हियर. यस, कंटेनर को अब क्या होता है कि जब आप बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं, आप ऐसे एक्सपेंड करते हैं तो उसके साथ वो चीज़ें भी एक्सपेंड होती हैं. यहाँ पे एक मैक्सिमम विड्थ मैं ऐड कर दूँ और मैक्सिमम विड्थ को आप फिक्स में कन्वर्ट करेंगे और इसका जो मैंने अंदर साइज दिया था, अगर आप इसका अकॉर्डिंग देखें तो मैं चाहूँगा कि इसी के अराउंड वो रहे. 429 है तो मैं 430 बाहर का मैक्सिमम विड्थ कर देता हूँ. Okay, now you can see that it is also, you can also keep heading like this. Okay, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइज बढ़ा देता हूँ, गैप बढ़ा देता हूँ. 24 is looking better. Here I kept this, but मैं चाहता हूँ ये थोड़ा और एक्सपेंड हो, तो आप यहाँ से इन टेक्स्ट का भी अलाइनमेंट मैनेज कर सकते हो. तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा 460. ये तब तक बढ़ेगा जब तक आपका वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ जाता. 520. Now it is good. I can also keep it 500. You can try and do things like कि कहाँ पे वो टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते. दैट इज़ कि हम मैक्सिमम विड्थ लगाए, इसको फिट करा, अंदर भी हमने सब चीज़ें ठीक करी, है ना. अब हम चेक करेंगे कि क्या
इसका टॉप वाला सेक्शन रिस्पॉन्सिव हुआ, सी, यस, टॉप सेक्शन इज रिस्पॉन्सिव, बट अभी हमारा अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, सो नो वरीज, उस पर भी हम काम करते हैं। तो यहीं पर इस अकॉर्डिंग को सिलेक्ट करके यहाँ जो फिट हो रखा है इसको हम फिल करेंगे कि वो उस जो मैक्सिमम विड्थ है उसमें वो फिल रहे, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो। दिस इज फिल फिट, दिस इज फिक्स, नो वरीज, यहाँ पे फिक्स्ड है बट यहाँ पे इसको फिल करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको सिलेक्ट करेंगे और इसको फिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाहर वाला स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी दैट नाउ इट इज रिस्पॉन्सिव, सी। तो अब आपका ये रिस्पॉन्सिव भी बन गया एंड आपका अकॉर्डेंस भी रेडी है। आप इसको ऐसे प्ले करके देखेंगे, नाउ इट इज कमिंग वेल। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है कॉर्नर में, नो वरीज, कंटेनर यहाँ पे क्लिप हो रखा है, मैं चाहता हूँ कि वो विजिबल हो। सी, दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व्ड एंड इट इज ओपनिंग वेरी वेल। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, अलग अलग डिज़ाइंस आप बना सकते हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है तो बस कुछ नहीं, आपको अंदर जाके उसका कलर चेंज करना है, उसमें शैडो ऐड करनी है, शैडो ऐड करिए, बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है, बैकग्राउंड इमेज ऐड करिए। So thank you for watching video. I hope this video will helpful for you. Comment in the section, I built my FAQ section. So thank you for watching video. See you in the next video. Bye bye.